हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, अ न्यू चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। इससे पहले चैप्टर हमने पढ़ा है इज मैटर अराउंड अस प्योर एंड मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मैन हैज ऑलवेज desirous to know the mystery of nature, and here the atoms and molecules constitute matter. ठीक है, how they constitute matter, how the atoms combine, how they form compounds, different types of compounds. There are so many questions. Okay. So a number of experiments has done by the scientists, and number of philosophies are given by the philosophers. So there are some important philosophies. ठीक है, some ancient concepts about the matter and divisibility of matter. ठीक है, we are discussing here some ancient concepts about the divisibility of matter. The ancient concepts. What are ancient concepts? So some Indian philosophers like Maharishi Kanad and महर्षि पकुड़ा कात्यायामा, ठीक है, के फिलोसफीज, ठीक है, अबाउट द मैटर एंड डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर। एक एक्सपेरिमेंट सुना होगा, राइस वाला एक्सपेरिमेंट। मीन्स एक एक्सपेरिमेंट किया महर्षि कनड ने डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए कि सम राइस लिए, ठीक है, राइस, और उनको चबाया, और चबाने के बाद उनको वापस हाथ पे लिया तो देखा जो राइस हैं वो क्या हुए, टूट गए हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए। उन्होंने उसको फिर खाया, फिर से चबाया, और फिर हाथ पे लिया वापस, तो देखा कि वो उसके पार्टिकल्स और छोटे हो गए। ऐसा उन्होंने कई बार किया। ठीक है, सो मेनी टाइम्स ही रिपीटेड द सेम एक्सपेरिमेंट अ नंबर ऑफ टाइम्स एंड ही फाउंड, तो फाइनली ही फाउंड द पार्टिकल्स becomes indivisible, means they becomes indivisible means they cannot be broken further into smaller and smaller. ठीक है, so they becomes very small, and he called these smaller particles परमाणु. ठीक है, so this was the experiment done by Maharishi Kanad. ठीक है, and he proposed the theory of atom. ठीक है, atomic theory, Maharishi Kanad. तो फर्स्ट नेम एन इंडियन फिलोसफर। ठीक है, एक तो इंडियन फिलोसफर महर्षि कनड का नेम आता है। हिंदी में इसको कणाद कहते हैं, महर्षि कणाद। ठीक है, व्हाट ही प्रपोज्ड, ही कॉल्ड द मैटर पदार्थ। ठीक है, ही कॉल्ड द मैटर पदार्थ, ही कॉल्ड द मैटर पदार्थ। हिंदी का एक वर्ड है पदार्थ। ठीक है, मैटर को उन्होंने पदार्थ कहा। एंड ही प्रपोज्ड द एटॉमिक थ्योरी एंड सेड proposed that the matter means padarth is made up of very very small particles. ठीक है, very very small particles. The matter of indivisible particles. ठीक है, मैटर किसका होना है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स होना है, एंड दीज पार्टिकल्स कॉल्ड परमाणु। तो उन्होंने इसको इन स्मॉलर पार्टिकल्स को क्या नाम दिया, परमाणु। ठीक है, तो एक ये कॉन्सेप्ट है महर्षि कनड। ही प्रपोज्ड द एटॉमिक थ्योरी फर्स्ट, he gave the philosophy, ठीक है, about the matter, divisibility of matter. Second is पकुड़ा कात्यायन। पकुड़ा कात्यायन
was also an Indian. He was also an Indian philosopher. Pagoda कहते हैं वहाँ. He also said the matter is made up of very very small particles. Means that smaller particles. These smaller particles constitute the different kinds of matter. ठीक है. The smaller particles. The very smaller particles constitute different kinds of matter. In the same series, some Greek philosophers like Leucippus, okay, and Democritus, okay, he also proposed their theory of atom. What he said, like the Maharishi Kannad and Maharishi Katyayana, he also said, who? The Leucippus. He was an Indian. He was Greek philosopher, Leucippus. He also said that matter is made up of very very small particles. ठीक है, matter is made up of very very small particles. ठीक है, matter is made up of very very small particles. And these small particles are known as atom. Who said this sentence? Who used the word atom? The next name of the first one, Democritus. Democritus used the word atom for these small particles, about which these philosophers are talking about. The smaller particles, the matter is made up of very very small particles. ठीक है, small particles से बनी है, सभी कह रहे हैं small particles से बनी है. तो उस small particle के लिए जो atom word जो हम अभी तक यूज करते हैं, atom चिल्लाते हैं, that atom word is used by Democritus. ठीक है, he was also Greek philosopher, atom जिन्होंने यूज किया. ठीक है, तो Democritus said the smaller particles of which the matter is made up of atom. ठीक है, so he said the smaller particles of which matter is made of are atoms. So who used this word atom? Democritus. And this atom word is came from atomio. It is a Greek word atomio. Atomio means indivisible. ठीक है, the atom was taken from the atomio. ठीक है, ये atom word जो लिया है, ये किससे लिया है? Atomio से लिया है. Atomio. It is taken from atomio. This word atomio, और अटोमियो का मतलब होता है इंडिविजुअल. ठीक है, अटोमियो का मतलब होता है इंडिविजुअल. सो दीज आर द एंशिएंट कॉन्सेप्ट्स अबाउट एटम. ठीक है, एंड द डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, अबाउट द डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर. नाउ द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री वाज लेड बाय two scientists, and the name of the two scientists are Anton L. Lavoisier and Joseph L. Prost. ठीक है, तो Anton L. Lavoisier and Joseph L. Prost in 18th century he laid the foundation of modern chemistry, and so the Anton L. Lavoisier is also known as the father of chemistry. ठीक है, now we will learn about some laws, some basic laws of chemistry. The law of conservation of mass, law of constant proportion. Okay. There are so many laws, several laws are given by the scientist.
law of conservation of mass, law of constant proportion, law of multiple proportion, law of definite proportion. But two important laws, law of conservation of mass and law of constant proportion, we will study about them. Law of conservation of mass and constant proportion in. So there important two laws we will learn about. Laws of chemical combination. What are these laws of chemical combinations given by the Antoine Lavoisier and Joseph L. Proust? So, laws of chemical combination. Laws of chemical combination. We are going to study about the laws of chemical combination. There are two important laws. First is conservation of mass and the second is the law of constant proportion. As we know, some philosophers gave the philosophy about the divisibility of matter and about atom, Parmanu, etc. But in 18th century, two scientists, Antoine Lavoisier and Joseph L. Proust, laid the foundation of modern chemistry, and a new era has arisen after these laws of chemical combinations. So, in 18th century, two scientists, Antoine Lavoisier and Joseph L. Proust, laid the foundation of modern chemistry. By giving these laws of chemical combination, two important laws of chemical combination. So what are these two laws of chemical combinations? The first, note regarding by giving the laws of chemical combination. Chemical combination. कौन कौन से लॉज हैं? फर्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, and the second is law of constant proportion. Many other laws are also given by the scientists, such as law of definite proportion, law of multiple proportion, etc. But these are two important laws. In this chapter, we will discuss these two laws: law of conservation of mass and law of constant proportion, which are in your syllabus in class 9. So first is law of conservation of mass. इसको हम डिस्कस करेंगे अब. उड़ा दे इसको, छाप लिया, नोट कर लिया, ठीक है, उड़ा देता हूँ. चलो उड़ा देते हैं. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, तो फर्स्ट क्या डिस्कस करेंगे हम? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है?
देखो कंजर्वेशन वर्ड तो जहां पर आएगा कई जगह देखा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो ये फिर से आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? हु गेव दिस लॉ? दिस इज गिवन बाय एंटोन एल लावोसियर, ठीक है। दिस लॉ इज गिवन बाय एंटोन एल लावोसियर। व्हाट इज दिस लॉ? देन मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस। कोई भी केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, सब्सटेंस, वन सब्सटेंस दूसरे किसी सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, चेंज होता है, तो उसमें कोई भी मास का लॉस नहीं होगा और ना ही कोई दूसरा सब्सटेंस या प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो उसमें कोई मास क्रिएट होगा। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सिंपल लैंग्वेज में। क्या है? अगर कोई भी ए सब्सटेंस चेंज हो जाता है बी में, ठीक है, कोई भी चीज, कोई सब्सटेंस है ए और वो बी में चेंज हो जाता है, तो जितना मास इधर है आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है, उतना ही मास रहेगा, मास में कोई भी चेंज नहीं आएगा। दिस इज सिंपल लैंग्वेज में है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। की मींस मास ऑफ रिएक्टेंट्स मींस द सब्सटेंस व्हिच टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, मास ऑफ इज ऑलवेज इक्वल्स टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स मींस द सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन always remains same. This is the law of conservation of mass. So what is law of conservation of mass? The mass can neither be created nor be destroyed during the reaction. कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो मास को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हु गेट दिस लॉ? दिस लॉ इज गिवन बाय, लॉ इज प्रपोज्ड बाय, हु प्रपोज्ड दिस लॉ? प्रपोज्ड बाय एंटोन लावोसियर। ठीक, कब दिया? in 1774. Okay, what is this law? देखो, if there are two substances and two substances A and B, कोई भी two substances हैं, reactants नहीं, ठीक है, कोई हमने two substances, कोई two reactants ले लिए A और B और उनको मिक्स कर दिया, मिला दिया। आफ्टर द रिएक्शन, अब इसमें रिएक्शन होता है, कुछ भी होगा और कुछ भी बन गया, ठीक है, कुछ भी बन गया, यहाँ पर कुछ भी बन गया, ये देखो कुछ भी मतलब सी और डी, कोई दो न्यू कंपाउंड्स, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गए सी एंड डी, और इन सी और डी को बोलेंगे हम प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स फॉर्म हो गए। इस प्रोसेस में, इस केमिकल प्रोसेस में जो ए और बी से सी और डी फॉर्म हुए, इस पूरे केमिकल प्रोसेस में जो टोटल मास है वो कंजर्व रहेगा, ठीक है, मींस मास ऑफ रिएक्टेंट्स इन दिस प्रोसेस क्या होगा? मास ऑफ रिएक्टेंट्स is always be equal to the mass of products. This is the law of conservation of mass. This is the law of conservation of mass. ठीक है? This is the law of conservation of mass. नोट कर लिया? कर लिया नोट? एक एक्सपेरिमेंट करते हैं इस पर, नोट कर लीजिए एक्सपेरिमेंट टाइप एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल तो जरूर होना चाहिए वरना समझ में कैसे आएगा अच्छे से। चलो उड़ा दो इसको, उड़ा दो, ऊपर उड़ा दो, चलो यहाँ उड़ा देता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ना ही हम इसको बना सकते हैं, ना ही हम इसको बिगाड़ सकते हैं, ना उड़ा सकते हैं, ना कुछ भी नहीं कर सकते इसका।
कुछ नहीं कर सकते इसका, बहुत ताकतवर है मास, कुछ कर नहीं सकते, यही है मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। लेट here is a flask, और ये फ्लास्क है और इसमें एक टेस्ट ट्यूब बांध दी हुई है। इस टेस्ट ट्यूब में है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इसमें क्या है सोडियम कार्बोनेट Na3CO3 Na2CO3 जो है 4 ग्राम, ठीक है, तो 4 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लिया है और इसमें लिया है हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये लिया है, ये 4 ग्राम है और ये है 10 ग्राम, ठीक है, तो 4 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लिया है और 10 ग्राम HCl। उसके बाद क्या किया, इसको शेक किया अच्छे से, डमरू की तरह हिला दिया इसको बढ़िया करके हैं, और जब हिलाएंगे तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन इसमें आ जाएगा और क्या होगा, एक रिएक्शन होगी। रिएक्शन होगी तो कैसी रिएक्शन होगी, इसमें Na2 और CO3 प्लस HCl की इसमें रिएक्शन होगी, तो ये क्या फॉर्म होगा, एक तो सोडियम क्लोराइड NaCl फॉर्म होगा प्लस CO2 फॉर्म होगी, तो ये CO2 फॉर्म होगी 2.5 ग्राम और ये होगा 11.5 ग्राम फॉर्म होगा। तो रिएक्शन के पहले जितना मास है देखो टोटल 14 ग्राम है, आफ्टर द रिएक्शन वो भी कितना रहेगा 14 ग्राम रहेगा देखो टोटल। सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मींस बिफोर द रिएक्शन जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स अगर देखें तो कितने हैं रिएक्टेंट्स, Na2CO3 4 ग्राम और HCl दैट इज 10 ग्राम, टोटल देखें तो इट इज 14 ग्राम, ठीक है। नाउ आफ्टर द रिएक्शन अगर हम प्रोडक्ट्स चेक करते हैं, प्रोडक्ट्स तो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं NaCl दैट इज 11.2 ग्राम एंड CO2 इट इज 2.5 ग्राम, सॉरी 11.5 ग्राम, एंड टोटल मास या वेट इज इक्वल टू 14 ग्राम। सो द मास before the reaction is equal to the mass of the after the reaction. It means it remains conserved. This is the law of conservation of mass. And now we will see the law of constant proportion. Okay, clear? Now the next is law of constant proportion. उड़ा दूं इसे? उड़ा दिया तो law of constant proportion. What is law of constant proportion? Law of constant proportion. Note that in the second is law of constant proportion. Law of constant proportion. देखो constant इस पर फोकस करो और proportion. So what is law of constant proportion? देखो for any pure chemical compound, किसी भी प्योर केमिकल कंपाउंड के लिए अगर हम चेक करें, किसी भी प्योर केमिकल कंपाउंड के लिए, तो उसमें जो एलिमेंट्स हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, जो उनका मास है, एलिमेंट्स का मास किसी भी कंपाउंड में, जैसे CO2 ले लिया तो इसमें कार्बन 12 ग्राम है और ऑक्सीजन 2 × 16 1 मोल का, ठीक है, चेक कर रहे हैं 1 मोल के लिए, तो इट इज 12:32, तो 4 से डिविजिबल है, तो 3:8। तो अगर हम चेक करें
रेशियो ऑफ मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 3:8. तो फॉर प्योर कार्बन डाइऑक्साइड एनीवेयर and the carbon dioxide obtained from any source, the ratio of carbon and oxygen remains same. Means they are always in the same proportion. Carbon and oxygen always combine in the same proportion to form carbon dioxide. This is the law of constant proportion. Means इनका जो proportion है कार्बन और ऑक्सीजन का, इनके कॉम्बिनेशन का जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा ही क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. चाहे हम वो ऑक्सीजन वो सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी सोर्स किसी भी जगह से, चाहे वो व्हीकल के साइलेंसर से निकले कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर वो हम एक्सेल करें कार्बन डाइऑक्साइड, या किसी भी सोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड, किसी रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करें, हम कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड को अगर ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, किसी भी प्रोसेस से हमें मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन के जो कंबाइनिंग रेशियो है वो हमेशा 3:8 रहेगा. एंड दिस इज कॉल्ड द कांस्टेंट प्रोपोर्शन. मींस वो हमेशा ही सेम रेशियो में ही कंबाइंड होंगे. दैट इज द 3:8 के रेशियो. ठीक है, बाय मास. तो उनका मास रेशियो क्या है, 3:8 है. सो व्हाट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. इसको उड़ा देते हैं. ठीक है, ऑल प्योर सैंपल्स of a compound, ठीक है, all pure samples of a compound contain same elements. ठीक है, मतलब all pure samples of a compound, किसी एक कंपाउंड में चाहे वो कितने भी सैंपल कहीं से भी लाएं, ठीक है, वो कंपाउंड कहीं से भी लाएं, किसी भी सोर्स से ऑब्टेन किया हो, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, कंटेन सेम एलिमेंट्स. ओके, एंड कंबाइंड सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन सेम प्रपोर्शन. ठीक है, और ये जो एलिमेंट्स सेम प्रपोर्शन में कंबाइंड होंगे. जैसे मैंने अभी कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल दिया. ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी हम ऑब्टेन करें, चाहे वो बर्निंग ऑफ कोल से ऑब्टेन करें, या हम जो एक्सेल करते हैं वो हो, या लाइमस्टोन को हीट करके ऑब्टेन करें, तो उसमें जो कॉम्बिनेशन है कार्बन और ऑक्सीजन का जो हमें अभी मिला था 3:8 वही रहेगा. ओके, सो हम इसको एग्जांपल में, अच्छा ये दिस लॉ इज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट, ये नोट करेंगे इसमें पॉइंट. दिस लॉ इज प्रपोज्ड बाय जोसेफ प्राउस्ट. ठीक है, this is also known as, this law is also known as law of definite proportion, also known as law of definite proportion. इसको definite proportion का लॉ भी बोलते हैं. ओके, सो एग्जांपल्स में मैंने कहा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, फॉर कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम कंबाइनिंग रेशियो देखें इसका बाय मास चेक करें, तो कंबाइनिंग रेशियो क्या है इसका, रेशियो बाय मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन. तो ये क्या है, इन CO2, C कितना है 12 ग्राम, ऑक्सीजन O2 है तो 2 इंटू 16 हो गया 32 ग्राम. What is the ratio of carbon and oxygen? That is the ratio is कितना हो जाएगा 12
32, 4 से कट करेंगे 3:8, तो ये आएगा कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आया वो 3:8 का आया है। ठीक है, तो कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑलवेज कंबाइंड इन 3:8, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ 3:8। तो अब वो कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ये मैटर नहीं करता ये कार्बन डाइऑक्साइड किस सोर्स से लिया है। ठीक है, तो इट डजंट मैटर द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम विच सोर्स इट इज ऑब्टेन्ड, फ्रॉम बर्निंग ऑफ कोल, फ्रॉम द व्हीकल्स, ठीक है, फ्रॉम any source it is obtained, the ratio of carbon and oxygen will remain same as 3:8. Okay, example number 2, तीनों भी करेंगे, it doesn't matter। matter from which source CO2 is obtained, the combining ratio of carbon and oxygen is remains same as 3:8। ओके, मतलब हमेशा ही सेम रेशियो में कंबाइंड होंगे। सो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आप और एग्जांपल्स नोट कर सकते हैं, जैसे वाटर, अगर हम वाटर के लिए लेते हैं तो वाटर का देखेंगे, वाटर का क्या होता है, H2O, हाइड्रोजन 1 ग्राम इंटू 2, ये हो गया 2 ग्राम, ठीक है, एंड ऑक्सीजन इट इज 16 ग्राम। सो व्हाट इज द रेशियो, 2/16, 2 1 जा 2 8 जा, 1:8 means hydrogen and oxygen always combined in 1:8 ratio to constitute a molecule of water। ठीक है, अब वो वाटर सी वाटर है, हैंडपंप से लिया है, पॉन्ड से लिया है, कहां से लिया है, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, हमेशा बस किस रेशियो में कंबाइन होंगे वो हमें से याद रखना है कि 1:8 के रेशियो में कंबाइन होगा। अगर 1 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइंड होगा, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है तो इसका डबल हो जाएगा, मींस 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइंड होगा। ऐसे ही सेम अगर 3 ग्राम ऑफ कार्बन है देन इट विल कंबाइन विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इफ 6 ग्राम ऑफ कार्बन is present there, then it will combine with 8 to the 16 gram of oxygen. If 12 gram of carbon, then there is 8 to the 24 gram of oxygen. So this is called the law of constant proportion. In next lecture we will